RBI Grade B is one such exam where you can not only rely on books. बहुत सारी इंफॉर्मेशन बुक्स में नहीं है या बुक्स में इनकम्प्लीट है, एंड फॉर दैट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यू वुड ऑलवेज बी रिक्वायर्ड टू गो टू द ऑनलाइन वर्ल्ड. And when you go online, the main problem is the problem of plenty. We always get confused that which one is the best for us. So in this video, I'm going to tell you 5 websites which from my experience are very important and very useful in your self preparation. And these websites are, again, they are not end-to-end solution, but these will help you in your preparation. कहीं ना कहीं आपकी preparation में important role play करेंगी. The first website is Management Study Guide. Now, management is one such subject which is very easy and there is a lot of information available on internet. So, Management Study Guide, I would say, is one website on which you can rely wholly and solely to study management. अच्छी information मिलेगी, vast मिलेगी, they will cover the various aspects and it is compact in its own way. तो मैं आपको दिखाता हूं कि how can you use this Management Study Guide website. ठीक है, let me go to this Google. तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे Management Study Guide. Suppose I want to say search Maslow theory. So I'll write Management Study Guide plus Maslow theory. And it will take me to the Management Study Guide. So here you will see that they have explained Maslow hierarchy needs theory. ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई है. इस वेबसाइट पे थोड़ी एड्स आएंगी बहुत ज़्यादा, आपको थोड़ा उसको हैंडल करना पड़ेगा. तो इसमें बहुत अच्छे से चीज़ें एक्सप्लेन हैं. एंड मोर ओवर व्हेन यू रीड समथिंग related to other topic, on the left hand side it gives you the complete hierarchy that where in that topic the particular thing which you are searching for falls in. तो यहाँ पे मोटिवेशन पूरा ही खुल जाएगा. तो आप एक चीज पढ़ने आए थे लेकिन आप सारा कुछ ही पढ़ लेंगे, इससे आपका पूरा चैप्टर तक कंप्लीट हो सकता है. राइट, यू कैन मैप इट विद योर सिलेबस वॉट एवर यू वांट टू रीड एंड यू कैन रीड. सो इमेंसली यूजफुल वेबसाइट. आई वुड से दैट यू शुड रेफर दिस एज योर फर्स्ट पॉइंट ऑफ reading. In case you are not able to find something here or you are not able to understand something from here, then you can go to other websites. So this was the first website, and the second one is Investopedia. This I am saying for your subject finance. Finance देखिए एक ऐसा subject है जो बहुत terms लेकर आता है अपने साथ. There are so many terms, there are so many small terms that when we are not able to understand that, एक पैराग्राफ में एक टर्म नहीं समझ आई तो पूरा पैराग्राफ हमें समझ नहीं आता है. इन दैट सेंस इन्वेस्टोपीडिया इज अ वेरी गुड वेबसाइट. इट कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड ऑल दीज टर्म्स. तो अगेन आपने करना कुछ नहीं है भाई, आपने इन्वेस्टोपीडिया पे जाना है. तो मैं अगेन गूगल पे जाऊंगा यहाँ पे. ठीक है, आई जस्ट से इन्वेस्टोपीडिया. इसके प्रॉज भी हैं, कॉन्स भी हैं इस वेबसाइट के, मैं दोनों बताऊंगा आपको. तो यहाँ पे सिर्फ आपको सर्च करना है. सपोज आपको आईपीओ समझना है कि आईपीओ क्या होता है. ठीक है, तो आईपीओ सर्च कीजिए. तो यहाँ पे आपको विद इन दिस वेबसाइट इट विल गिव यू अ लिंक व्हाट इज एन आईपीओ एंड हाउ डज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग वर्क्स. तो अगेन यहाँ पे भी एक पूरा इंडेक्स खुल जाता है आपके लेफ्ट साइड पे, where they will explain everything about IPO, how IPO works, history of IPO, the IPO process. They will explain you everything in detail. It's a very good website. Suppose I want to search in other terms, I want to search about green shoe option. ठीक है, तो यहाँ पे आप ग्रीन शू ऑप्शन कोई टर्म है आपने कहीं पे पढ़ी है, अगेन इट विल एक्सप्लेन इन अ वेरी compact yet elaborative manner so that you can understand the entire concept. The only drawback of this website is actually that this is mainly based on foreign concepts. तो कई बार क्या होता है कि कई regulations या regulatory bodies के जो नाम है वो foreign के होंगे. So you please ignore it. You just try to understand the basic concept of finance, theoretical concept, which remains the same whether that is US or whether that is India. The third website, which is very common, we have been telling you again and again about this third website, is PIB for current affairs. ठीक है, तो PIB भैया अब हम सब जानते हैं कि PIB इम्पॉर्टेंट है. थोड़ा सा बता देता हूँ PIB कैसे पढ़ना है आपने. दो आई मीन इट कैन टेक मी अराउंड 30 मिनट्स टू एक्सप्लेन कि PIB कैसे पढ़ना है. तो PIB में आप जैसे ही PIB खोलेंगे यहाँ पे प्रेस रिलीजेस में यू हैव टू गो टू ऑल रिलीजेस, जहाँ पे उस दिन की सारी रिलीजेस जो आई होंगी यू विल बी एबल टू सी, यू कैन गो थ्रू इट. तो यहाँ पे अभी ये ऑल मिनिस्ट्री 10th फरवरी को जो भी अपडेट्स आई हैं,
ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ये सारी मिनिस्ट्री की अपडेट्स दिखा रहा है. नो व्हाट यू नीड टू डू इज, इफ यू आर रीडिंग इट ऑन डेली बेसिस, आपको हर रोज इस पूरे अपडेट्स को सर्च करना है. यू फाइंड आउट व्हाट इज रेलेवेंट फॉर यू एज पर द नीड्स ऑफ द एग्जाम एंड एज पर योर सिलेबस एंड गो थ्रू इट. अगर आप मिनिस्ट्री वाइज पढ़ना चाहते हैं कि मुझे पूरे महीने की, सपोज कीजिए आपके सिलेबस में टॉपिक है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, राइट, एक इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है आपके सिलेबस से रिलेटेड, और यहाँ पे आप सपोज कीजिए ऑल पढ़ना चाहते हैं, ऑल इन जनवरी, तो आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको जनवरी की जितनी भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की अपडेट्स होंगी, न्यूज होंगी, वो सारी आपको दिखा देगा. दिस इज हाउ ऑल्सो यू कैन रीड इट अबाउट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज. सपोज आई वांट टू रीड अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन for the month of January. Again, I'll search Ministry of Education and I can read all the news related to Ministry of Education from here. Again, when you search for a particular ministry, please try to map it with your syllabus. Do not try to read about all the ministries. There are 100 plus ministries given here, right? And it would be very difficult for you to read so much, and that is not useful because in your exam what would be asked would be related to the syllabus. तो अगर आपके syllabus में फाइनेंस है तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पढ़िए. आपके सिलेबस में कहीं ना कहीं आप देखिए सोशल जस्टिस, माइनॉरिटीज़ की बात की जाती है तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स पढ़िए. कहीं ना कहीं अर्बनाइजेशन की बात की जाती है, माइग्रेशन की बात की जाती है तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की बात कीजिए. मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़िए. तो जो भी मिनिस्ट्रीज, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, क्योंकि जेंडर इश्यूज एक टॉपिक है, तो जो भी मिनिस्ट्रीज आपके सिलेबस से रिलेटेड है उन मिनिस्ट्रीज को सर्च कीजिए, उनसे रिलेटेड न्यूज़ पढ़िए. दैट इज द वे यू नीड टू कवर इट. बाकी इसको पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा बट इट इज़ वर्थ इट. आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पीआईबी से पूछे जाते हैं. नेक्स्ट इज, जो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं बट दैट्स माय फेवरेट वेबसाइट, दैट इज माई स्कीम. ये वेबसाइट बहुत अच्छी वेबसाइट है इन केस यू वांट टू कवर स्कीम्स. तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ बार में माई स्कीम, तो ये माई स्कीम वेबसाइट खुल गई. मैं माई स्कीम वेबसाइट पे जाऊंगा. नाउ इट्स अ नाउ वेरी वेल आई वुड से क्यूरेटेड वेबसाइट वेयर यू कैन फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट स्कीम्स. तो यहाँ पे सपोज कीजिए मुझे इंफॉर्मेशन ढूंढनी है फसल बीमा योजना के ऊपर. I'll search it and I'll get that Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. I'll click on it. It will give me most of the details. Who is the implementing agency, right? Then what are the risks covered in this? Benefits क्या हैं? प्रीमियम रेट्स क्या है, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. एलिजिबिलिटी क्या है, हु कैन टेक बेनिफिट अंडर दिस स्कीम. एक्सक्लूजन्स क्या है, कौन बेनिफिट नहीं ले सकता है. सो लाइक दिस यू सर्च फॉर एनी स्कीम. मोस्ट ऑफ दी स्कीम्स यू विल फाइंड इट हेयर. सपोज यू want to read about बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, you search it, you will find it here, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. Again it will tell you the objectives, what are the different components of this scheme, right? Then what are the different benefits, everything you will get here at one place. Very good website I would say. इसको यूज करना आना चाहिए, एंड द मोर यू स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम इट द बेटर यू विल फाइंड योर सेल्फ इन कवरिंग द स्कीम्स पार्ट. और आपके एग्जाम में स्कीम्स भर भर कर आती हैं, स्पेशली इन योर फेज 2 एसआई पेपर. सो इट्स रियली गुड थिंग दैट इफ यू कैन गेट होल्ड ऑफ this website you will be able to cover schemes quickly. And the last one is very very important because most of you are not able to remember the current affairs. So यहाँ पे मैं एक वेबसाइट बताऊंगा आपको, QuestGen AI वेबसाइट है. ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं. It's not that QuestGen is something unique. It's just that I use it for my personal use. So I'm telling you, I find it decent. इससे अच्छी भी होंगी, बट अगर आप ये यूज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं. इसका फायदा क्या है मैं आपको समझाता हूँ. The main benefit of this website is कि ये मैंने स्पेलिंग गलत टाइप कर दिए हैं. सो आई एम नॉट एबल टू फाइंड इट. आई थिंक मुझे ये एग्जैक्ट लिंक कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा. सो हम ये QuestGen.ai वेबसाइट पे जा रहे हैं. सो यू कैन जस्ट से आई वांट टू स्टार्ट फॉर फ्री. तो यहाँ पे द पॉइंट इज ये फ्री वर्जन है, यू कैन अपग्रेड इट. तो यहाँ पे जैसे ही आप अब कोई भी टेक्स्ट कॉपी पेस्ट करेंगे, इट विल आस्क यू दैट आप किस तरह का क्वेश्चन बनाना चाहते हैं. सपोज आप बोले कि मैं एमसीक्यू बनाना चाहता हूँ.
और मैं कितने एमसीक्यू बनाना चाहता हूं? मैं 4 एमसीक्यू बनाना चाहता हूं। डिफिकल्टी लेवल में हार्ड बनाना चाहता हूं और एमसीक्यू में ऑप्शंस में 4 रखना चाहता हूं। एंड द मोमेंट यू सबमिट इट फ्रॉम दिस पैराग्राफ इट विल मेक यू सम क्वेश्चंस। द बेनिफिट इज दैट व्हेनेवर यू आर रीडिंग समथिंग वी आर नॉट एबल टू रिटेन इट। सो अ गुड वे टू रिटेन इट कि आप जो भी पढ़ रहे हैं आप उसको कॉपी करके यहाँ डालते रहिए, उसमें एमसीक्यूज बनाते रहिए 5-5, 10-10 एंड कीप प्रैक्टिसिंग दोज एमसीक्यूज पैरेलली व्हेन यू आर रीडिंग इट। उससे आपका रिटेंशन बहुत बढ़ जाएगा। और रिटेंशन बढ़ गया ना, अगर करंट अफेयर्स याद रहने शुरू हो गए, मतलब यू आर अ विनर। द मेन प्रॉब्लम इन द करंट अफेयर्स इज कि हम पढ़कर भी भूल जाते हैं और वहां पे हमारा बहुत टाइम जाता है। सो सपोज ये एक पैराग्राफ है स्पेस एक्स के ऊपर जो एलन मस्क की कंपनी है, तो ये पैराग्राफ के ऊपर मैंने सबमिट किया तो मुझे कुछ क्वेश्चंस बना के दे देगा। ठीक है, यहां पे कुछ क्वेश्चंस बन के आ गए हैं। अब मैं चेंज भी कर सकता हूं। मुझे लग रहा है कि नहीं यार, मैं एमसीक्यू की जगह मैं फिल इन दी ब्लैंक्स करता हूं बिकॉज उससे मुझे ज्यादा रिटेंशन बढ़ेगा। सो आई कैन गो फॉर फिल इन दी ब्लैंक्स ऑल्सो। तो यहां से आप अपना रिटेंशन बहुत बढ़ा सकते हैं आई थिंक, और आपको बहुत बहुत ज्यादा मजा आएगा जब आप जो पढ़ेंगे उस पर साथ के साथ आप 10-15 एमसीक्यूज कर रहे हैं। थोड़ा टाइम लगेगा बट वो टाइम बाद में रिवीजन का आपका बच जाएगा। तो ये कुछ वेबसाइट्स हैं जो मुझे लगता है कि आपकी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं हेल्प करेंगी। एंड देयर आर अदर स्कोर्स ऑफ वेबसाइट्स व्हिच आई कैन टेल यू, but let's give you the information slowly and slowly so that you are able to absorb it and you are able to implement the same. बाकी ये हमारी गाइड बुक है which is a very good source of the entire information you would need to prepare for this exam. यहाँ पे आपको आरबीआई के बारे में सब कुछ मिल जाएगा, डिपार्टमेंट्स, हायरार्कीज, प्रमोशंस, सैलरी, इनहैंड सैलरी, एंड अबाउट द एग्जाम आल्सो यू विल गेट द प्रीवियस ईयर पेपर्स। आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स के साथ आपको एक बुक लिस्ट पूरी मिल जाएगी, आपको पूरी स्ट्रैटेजी के बारे में भी पता लग जाएगा एज इन हाउ डू यू वांट टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। एंड दिस गाइड बुक इज एक्चुअली फ्री ऑफ कॉस्ट। You just need to go to the description of this video. There is a link to download this guidebook. उसको download कीजिए, पढ़िए. I'm sure that you will get a lot of clarity and you will get that next dose of motivation that you would have ever required to start preparing for RBI Grade B. And these are our courses for RBI Grade B. In case you are looking for some assisted preparation, EduTap can be one. EduTap can be your mentor. So we offer Gold Pack and Silver Pack. So Gold Pack is for Phase 1, Phase 2 and interview. Right, and Silver Pack is mainly for Phase 2 and interview. But in Phase 1 of the Silver Pack you will get GA also, but you will not get quant, reasoning and English. So depending upon what is your need, if you're good in quant, reasoning, English, you can go for Silver Pack, otherwise you can go for the Gold Pack. And there is some sample material which is given in the description of this video. Go and check out the sample material, check whether that is quality, whether you are able to understand it, whether it's comprehensive. क्या आपको लगता है कि उतना पढ़ना काफी रहेगा एग्जाम में? यू हैव टू फाइंड आंसर्स टू दोस क्वेश्चंस एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू बिल्ड दैट ट्रस्ट. And when the trust is there, you are always welcome to become part of EduTap community. Thank you. Have a nice day. Bye bye. Jai Hind.